कुछ होने में और बहुत कुछ होने में इतना सा फर्क है, एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है, वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी, ये एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और सातवें आसमान में फर्क बस इतना सा। ये एक अंतर प्रेरणा, ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क। धूप छांव में फर्क बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. A very good afternoon to each and everyone who has joined us today for our Business Opportunity with Chai webinar series. Franchise India teams welcomes you for this particular special webinar. Franchise India is Asia's largest integrated franchise solution company, which is helping day in, day out all the investors in getting the business solutions, suggestions from our side so that you can take conscious and informed decision of selecting the right business opportunity for you. We were the first company to introduce and develop franchise market in India. And we are truly committed towards our brands as well as towards our investors. We have consulted more than 5,000 international and national brands to expand their business with our 80 plus offices. With this introduction, I welcome management team of Franchise India, Gaurav sir and Sonia ma'am. During the course of the webinar, they'll be sharing their insights as well as their viewpoint. This is the digital representation of the brand and we do not endorse any particular brand. With this introduction, may I invite Sonia ma'am to talk about our initiative which we have taken for all our investors related to the Advantage program. Thank you so much, Sonia ma'am, for joining in. Over to you, ma'am. Thank you so much, Arshna, and a very good afternoon to all our friends who have joined today's webinar, Business Opportunity over Chai. And I also take this opportunity to welcome our brand of the day, Sushil ji, who's representing Mr. Puff, and also our branch partner, Mr. Raj Naik from Vadodara, who's also joined today's webinar. And friends, before I formally invite our brand of the day, I'll also take a minute to take you through the Investor Advantage program, which we started last year. And while at Franchise India, all these 23 years, we have been working very, very closely with every investor who has a desire of starting a business for himself. And through our platform, we understand people are exposed to a lot of information, business models, opportunities, which are presented across various industries every day. And while every opportunity or brand we maintain is good in its own right, but at the same time, investors need to find their own right fitment of how to evaluate these opportunities. So through this Investor Advantage program, every investor can leverage and take time of our independent franchise consultants, our branch partners, who can help them to assess the opportunities which we
have a foundation, which is 5 assessment tools that we take into consideration, which includes your own self-assessment of what is right for you, which includes your business skills, your experience, your knowledge, and also most important in these times, the ability to meet the challenges. The second assessment tool that we consider is industry. So we also give you insights and in-depth understanding on the industry overall, the attractiveness of the industry, and most important, how future fit is that industry. Third is the market assessment, which means the locations, the markets where you wish to open. So that understanding is also something our teams and our advisors work with every investor. And fourth, we also work with you to give a peer-to-peer competition analysis, which means we look at similar brands in the industry at the national and the regional level. And lastly, we work with every investor on doing an in-depth brand analysis or diagnostic, so to say. So all these assessment tools help any investor to make a responsible choice of buying a business, where our teams help you to explore the information. We share the education side of the business. We work on the explanation, which is insights. And lastly, we work to personalize all the solutions, which is based on these 5 tools. At the same time, since we understand people are looking, exploring, and sometimes have not decided to buy an opportunity, we've also started these no obligation sessions. We do these Zoom sessions and telephonic calls with every investor who wants to explore or brainstorm any kind of opportunity with us, which we do through our independent franchise consultants, our offices, and also through our direct teams and the management team of Franchise India. So you can reach out to our hotline friends in case you're exploring any kind of opportunity you want to brainstorm. You can pick your call and you can block your session with us, and these are no obligation sessions. I now request Ashna to formally have our brand of today invited to proceed with our presentation. Over to you, Ashna. So thank you so much, Sonia ma'am, for sharing that initiative with each one of us. The brand which we have got for you today is Mr. Puff. The brand which was established in 1950, they're into market for 71 years. It's the brand which has a global presence with continents like Africa, US, Middle East, Europe, and they're running 40 plus successful outlets in India. They also have some ISO certifications. It's a perfect combination of legacy and modern market. And we invite Mr. Sushil, who is the 3rd generation in this particular business. Along with him, we also invite and welcome Mr. Vinod Doda, who will be talking about this great brand. Thank you so much, both of you, for joining in today to showcase your business model with us. But before we formally take you through the complete and correct understanding about the brand, we would like to play a small video on the brand. May I request Kanika to play the video for us? Make your celebrations with Mr. Puff, premium bakery products since 1950. Thank you so much, Kanika, for playing the video for us. Now we'll start with the formal presentation on the brand. Over to you, Sushil sir. Over to you, Lodha sir. Thank you, Archana. Thank you, Sonia ji. Thank you, Gaurav sir, for giving us a best platform to expand our business national level. So myself, Sushil Thadani, Managing Director of Mr. Puff Mitesh Food Products Private Limited. So basically, we are into this business since 1950. Rightly said, Archana, this is a legacy brand. So we know in and out of our industry since 71 years, we are having this same business. So in 2001, I was like confused whether which brand should be, the name of the brand should be for future expansion. So after so many brainstorming thought processes, we come to conclusion of Mr. Puff. So Mr. Puff itself is a brand in his name. So basically my grandfather started this business in 1950
My father does this business for 35 years, and now since 22 years, I am in this business. So we are ISO 22000 certified company. We have a huge facility in Vadodara, 60,000 square feet of factory area. Basically, the core values of our business is quality, honesty, and purity. So when I took over this business, one fine day I was sitting with my father and we discussed about these values. So he said me that, beta, we are maintaining quality, honesty, and purity in our organization. So I said, Dad, मैं जो है quality अपने thoughts में भी maintain करूंगा और अपने product में भी maintain करूंगा. Honesty मुझ में भी रहेगी और ऑनेस्टी मेरे स्टाफ में भी रहेगी. प्योरिटी, मेरा सोल प्योर रहेगा और मेरी प्रोडक्ट में भी प्योर रॉ मटेरियल यूज करूंगा. व्हेन आई डिस्कस दिस थिंग, तो डैड ने कहा, बेटा आज से ये जवाबदारी तेरी, टेक दिस ब्रांड टू द नेशनल लेवल और नेक्स्ट लेवल. तो उस दिन से इसी ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ हूँ और बिजनेस कर रहा हूँ. सो वी हैव अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेंज ऑफ फास्ट फूड. सो बेसिकली वी आर इनटू पफ, जो ब्रांड नेम आप सुन रहे हो, मिस्टर पफ. So we are the pioneer to make this puff as a organized sector. Pizzas, garlic bread, bruschettas, toasties, etc., etc. We have in product range tea cakes, muffins, as well as popular dry items like khari, toast, rusk, cookies, cream rolls, biscuits, and roasted snacks. Right now, our presence is in Baroda, in Ahmedabad. We have outlet in Godhra, we have in Halol, we have one outlet in Daboi, we have one outlet in Karjan, one outlet in Gandhinagar, one outlet in Anand. So 48 outlets अभी हम लोगों के चल रहे हैं और सारे ही outlets बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं. एंड सक्सेसफुल ब्रांड जो बोलते हैं हम लोग, वैसे अगर किसी से भी हम लोग बात करते हैं तो हमें प्राउड फील होता है कि मिस्टर पफ ने एक प्रोडक्ट पफ को जो है इतना बड़ा ब्रांड बना दिया. सो नेशनली वी हैव वाइड स्प्रेड नेटवर्क. हमारे काफी स्टॉकिस्ट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. 20 सिटीज में हम लोगों का अभी प्रेजेंस है. अगेन वी डू एक्सपोर्ट इन मैनी कंट्रीज, जैसे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, 20 कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं. सो पेरेंट कंपनी जो है हमारा वो है मितेश फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंडर में मिस्टर पफ ब्रांड रजिस्टर किया हुआ है. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, अगर हम बात करते हैं विजन की, तो मैंने बहुत अच्छे से विजन, जब हम लोग विजन बना रहे थे 2000 में, तब इस पे काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके विजन बनाया कि वी वांट टू बिकम अ ग्लोबली रिस्पेक्टेड फूड कंपनी. अब ग्लोबली रिस्पेक्टेड मींस व्हाट, कि अगर मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मेरा सर्विस बहुत अच्छा है, तो ही कस्टमर रिस्पेक्ट करेगा, तो ही मुझे लोग रिस्पेक्ट देंगे. अगर मैंने मेरे सप्लायर्स को संभाला, उनको टाइम पे पेमेंट दिया, उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखे, तो रिस्पेक्ट मिलेगा. तो मैंने बहुत अच्छे से लिखा, टू बी ग्लोबली रिस्पेक्टेड फूड कंपनी दैट रिचेस इंडियन टेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, स्प्रेडिंग हेल्थ एंड हैप्पीनेस. क्योंकि मैं फूड इंडस्ट्री में हूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ. अगर हेल्थ अच्छी है तो हैप्पीनेस तो ऑटोमेटिक आनी है. तो अगर जो प्रोडक्ट मैं खिला रहा हूं, उससे मेरे कस्टमर की हेल्थ मेंटेन होनी चाहिए, और अगर हेल्थ मेंटेन होती है तो ही विल बी मोर हैप्पी. सेकंड, हमारा मिशन जो रहा वो टू बिकम एन इंटरनेशनल ब्रांड, एक्नॉलेज एंड रिनाउंड फॉर इट्स सर्विस एंड डिलीवरी बियॉन्ड कस्टमर एक्सपेक्टेशन. अब बियॉन्ड कस्टमर एक्सपेक्टेशन इज व्हाट, कि कस्टमर दिन ब दिन उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है. वो चाहता है कि कुछ और एक्स्ट्रा मिले, कुछ और एक्स्ट्रा मिले. तो हम लोग हमेशा से ये ट्राई करते रहे कि उसको बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हमारे कस्टमर्स को हम क्या दे सकते हैं, विथ अ फर्म कमिटमेंट टू क्वालिटी, ऑनेस्टी एंड प्योरिटी. ये वैल्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने पकड़ के रखा है. टू विन कस्टमर लॉयल्टी एंड पेट्रोनेज बाय कांस्टेंट इनोवेशन. अगर कांस्टेंट इनोवेशन की बात करें तो हमारे पास 500 SKUs है अभी. रेगुलर हम लोग जो है R&D टीम के साथ बैठकर नया प्रोडक्ट, नया इनोवेशन करते रहते हैं. हार्मोनियस एंड सिंक्रोनाइज अप्रोच, वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर मैं बिजनेस को एक्सपांड कर रहा हूं, तो मेरे स्टाफ के साथ, मेरे फैमिली के साथ
मेरे कस्टमर्स के साथ, मेरे सप्लायर्स के साथ मेरा एक हार्मोनियस एंड सिंक्रोनाइज अप्रोच होना चाहिए, हम लोग सब हैप्पीली बिजनेस कर पाए। अनकंडीशनल लव एंड एन एम्बिशन टू ग्रो एंड इवॉल्व फॉरएवर। कहां पर हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी की लाइफ में, अगर मिस्टर पॉप ब्रांड कहीं कंट्रीब्यूट कर सकता है तो वो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं। नेक्स्ट, इवोल्यूशन एंड जर्नी। 1950 से जब ये ब्रांड चालू हुआ, मेरे ग्रैंडफादर ने 1950 में एक छोटा सा बेकरी सेटअप किया जहां पर हम लोग ब्रिटिश रेसिपी से सारी प्रोडक्ट्स बनाते थे। माय ग्रैंडफादर, उन्होंने जो है ये बिजनेस जो सीखा वो लंदन में लैंकेशायर में हैंटली फार्मर्स कंपनी के जनरल मैनेजर जो बॉम्बे रहते थे, उन्होंने उनको ये पूरा ब्रांड, उन्होंने ये पूरा प्रोडक्ट जो बेकरी का है वो सारा उनको सिखाया और उसको ध्यान में रखकर यहाँ पर बड़ौदा में आकर उन्होंने ये छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। अभी 1960 में वी वर द फर्स्ट वन टू लॉन्च एगलेस केक्स इन बड़ौदा। तब एग वाला कॉन्सेप्ट चलता था और हम लोगों के यहाँ पर एगलेस केक मिलता था। लोग कहाँ से लेकर लेने आते थे एगलेस केक। 1970 में हम लोगों ने बेबी बिस्किट लॉन्च किया। बेबी बिस्किट जो बार्ली में से बनता है, 6 महीने का बच्चा जो होता है उसको हम लोग ये बेबी बिस्किट देते हैं। आज भी हम लोग वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसकी हेल्थ और उसको जो न्यूट्रिशंस चाहिए बच्चे को, वो सारा हम लोग इसमें इंग्रेडिएंट्स में ऐड करते हैं। 1980 में मेरे फादर ने पफ बनाया। एक कॉलेज का कोई फन फेयर था और बच्चे आकर पूछ रहे थे कि अंकल आप पफ बनाते हो? तो मेरे डैड ने बोला ये पफ होता क्या है? तो बोला कि बेकरी का समोसा है। तो डैड ने कहा अच्छा मुझे बताओगे कैसे बनाते हैं इसको, क्या अंदर होता है? इस तरह से डैड ने जो है पफ का पूरा रेसिपी सेट करके और उन बच्चों को फन फेयर में उस जमाने में पफ खिलाना शुरू किया। और तब से वो पफ इतना फेमस हो गया कि हमारे यहाँ लोग लाइन में खड़े रहकर पफ खाने लगे। 1990 में हम लोगों ने पराठा स्टफ बन जो बोलते हैं, स्टफ पराठास, रेडी पाव भाजी, आप ड्राइविंग करते करते डायरेक्ट पाव भाजी खा सकते हो, वैसा एक प्रोडक्ट हमने फास्ट फूड में ऐड किया। 2002 में मिस्टर पफ एक नया ब्रांड जो है हम लोगों ने इसको दिया, नया रूप दिया, नए कपड़े पहनाए और तब से मिस्टर पफ जो है बड़ौदा में हम लोगों ने लॉन्च किया। 2004 में बड़ौदा में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर 12 आउटलेट कर दिए। हर एरिया में अच्छी प्राइम लोकेशन में मिस्टर पफ का आउटलेट दिखने लगा। ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई एजेड नहीं था जिसको मिस्टर पफ पता नहीं था विदिन 3 इयर्स, क्योंकि वो सारी मीडिया, सारी जो भी ब्रांड को लेकर किया जाता है मार्केटिंग। मेरे डैड के साथ मैं आपसे इंसिडेंट शेयर करूंगा। डैड के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठा था और मैंने बोला डैड मुझे मिस्टर पफ को है ना ब्रांड बनाना है, और कंसल्टेंट बोल रहा है 10 लाख रुपए का खर्चा है ब्रांड बनाने में, एडवर्टीजमेंट में। तो डैड बोलते हैं बेटा तू बावरा हो गया है, थोड़ा जमीन पे आ जा, हवा में उड़ना बंद कर। हम लोगों ने 50 साल में 50,000 खर्चा नहीं किया, ब्रांड होता क्या है। तब डिस्कशन में मुझे 3 महीने लगे उनको कन्विंस करने में कि ब्रांड क्या होता है और मुझे ब्रांड क्यों बनाना है। और फर्स्ट ईयर मैंने 10 लाख रुपए का खर्चा करके, बड़ौदा में ऐसा कोई मीडिया बाकी नहीं जहां पर मिस्टर पफ का आपको होर्डिंग, बैनर, टीवीसी, हर जगह पर लीफलेट्स, फ्री सैम्पलिंग्स, साइकिल पे बच्चों को, लड़कों को टी शर्ट पहना के घुमाना, फिर टेम्पो घुमाना विद म्यूजिक सिस्टम, वो सब कुछ किया हमने मिस्टर पफ को ब्रांड बनाने के लिए। 2007 में वी स्टार्टेड अवर एक्सपोर्ट ऑपरेशंस। हम लोगों को एक हमारे आउटलेट पर काफी लोग बोलते थे कि हम आपका प्रोडक्ट ले जा रहे हैं यूएस, वहां मिलता नहीं है, मुझे 10 पैकेट दे दो पैक करके। ये जब सुनते थे हम लोग तो हमें लगा कि ये प्रोडक्ट में इतना दम है कि लोग फॉरेन हमारे यहाँ से लेकर जा रहे हैं, क्यों ना उनको वहां पर पहुंचाया जाए। वो थॉट प्रोसेस से हम लोगों ने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया। सिंगापुर मुस्तफा मार्केट में हमारा फर्स्ट कंसाइनमेंट गया उस वक्त 2007 में, और आज 2021 में भी लास्ट मंथ हमने एक कंसाइनमेंट वहां भेजा है। तो कंटिन्यू साल में 3, 4, 5 कंटेनर सिंगापुर जाते हैं, यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं। तो 20 कंट्रीज में हम लोग अभी प्रोडक्ट हमारा मिस्टर पफ का भेज रहे हैं। 2007 से ये जर्नी स्टार्ट हुई एक्सपोर्ट की। 2010 में हम लोगों ने मॉडर्न ट्रेड,
अब एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया, हमें मजा आने लगा। तो हमने सोचा जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, छोटे छोटे सुपर स्टोर्स हैं बड़ौदा में, सराउंडिंग बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, राजस्थान, तो क्यों ना हम उनको अप्रोच करें और वहां पर हमारा प्रोडक्ट भेजें। तो फिर 2010 2011 हम लोगों ने वो बिजनेस को डेवलप किया। 2015 में वी लॉन्च ई कॉमर्स वेबसाइट, लोगों को डायरेक्ट ऑर्डर देने का। तब डिजिटल बहुत ही चल रहा था, तो वी थॉट लेट्स प्लान फॉर ई प्लेटफॉर्म। तो वहां से भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों ने बोला कि भी ये प्रोडक्ट को इंटरनेट पे आ गया, अब हमारे बड़ौदा में जो है पफ और केक हमें ऑनलाइन मिलता है। और 2016 में वी वर 2048 आउटलेट्स, 40 प्लस आउटलेट्स, एंड 2017-20 में हम लोगों ने बड़ौदा में एक बहुत बड़ा यूनिट 65,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेकर एक स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया है, जहां से अब हम लोग पूरा हमारा वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट। फॉर आवर क्वालिटी पॉलिसी मैं विनोद को बोलूंगा, क्योंकि विनोद हमारे साथ 20 इयर्स से है ऑर्गेनाइजेशन में। मेरे साथ जब से मैं हूं इस ऑर्गेनाइजेशन में तब से विनोद है, तो ही विल एक्सप्लेन यू कि क्वालिटी पॉलिसी कैसे हम लोग मैनेज करते हैं। ओवर टू यू विनोद। Thank you, Sushil sir. I would also like to thank Gaurav sir, Sonia ma'am, Archana ma'am, Anshul sir, Raj sir for giving us wonderful platform where we can introduce and share awareness about our brand. Hello everyone, I am Vinod, General Manager, Mr. Pop. I am associate with company since 2000. As Sushil sir rightly said, we believe in quality, honesty and purity. So we as a team make sure that we deliver what we committed. कोई भी ब्रांड की सक्सेस के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है प्रोडक्ट की क्वालिटी, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट की क्वालिटी कंसिस्टेंसी। अगर ब्रांड में अगर कोई भी ब्रांड की प्रोडक्ट में क्वालिटी है और कंसिस्टेंसी है तो उसका सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है। आज मिस्टर पॉप ब्रांड 71 इयर्स से प्रोडक्ट क्वालिटी को संभाल के रखा है मिस्टर पॉप ब्रांड ने। तो उसका मेन रीजन है राइट सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। वी आर यूजिंग बेस्ट क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन आवर प्रोडक्ट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पॉप की मेकिंग प्रोसेस में ऑनियन होता है, ऑनियन को फ्राई करना होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम घर में भी अगर सब्जी बनाते हैं तो जो ऑनियन फ्राई करते हैं वो ऑयल में फ्राई करते हैं। बट जब से हमने पॉप बनाना स्टार्ट किया है, हमारे यहाँ जो ऑनियन फ्राई हो रहा है पॉप के लिए वो बटर में हो रहा है, और वो भी अमूल बटर में। क्योंकि वी बिलीव कि जो प्रोडक्ट कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जो प्रोडक्ट बॉडी के अंदर जा रहा है और जिससे ब्लड बनता है, उसके साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सेकेंडली, अच्छे रॉ मटेरियल के लिए अच्छा सर्टिफाइड वेंडर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में अच्छे सर्टिफाइड वेंडर है तो रॉ मटेरियल की क्वालिटी में कंसिस्टेंसी रहती है और उससे आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी कंसिस्टेंसी मिलती है। नेक्स्ट, अगर मैं बात कर रहा हूँ हाइजीन और क्लीनिंगनेस की, तो आज की इस पेंडेमिक सिचुएशन में मेजरली हर एक कस्टमर को माइंड में ये रहता है कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करने से पहले कि मैं जो ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ या कंज्यूम कर रहा हूँ वो कौन से एनवायरनमेंट में बनी होगी, क्या वहाँ हाइजीन के सारे स्टैंडर्ड मेंटेन किए होंगे। ये सब क्वेश्चन होते हैं दिमाग में, तो वो थोड़ा सा डरता है आज प्रोडक्ट को लेने में। और शायद यही आज एक रीजन है कि हर एक कस्टमर आज ब्रांड की तरफ जो है ना डाइवर्ट होता जा रहा है। तो हमारे यहाँ फैक्ट्री में सारे नॉर्म्स हाइजीन के मेंटेन होते हैं। हम स्टाफ को जो है कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग देते हैं। साथ में हमारे हर एक एम्प्लॉयज का हम लोग मेडिकल सर्टिफिकेशन भी करवाते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाते हैं। अब जैसे हाइजीन की बात की, उसके साथ में आता है प्रोडक्ट का स्टोरेज। तो हमारी फैक्ट्री में फूड एंड सेफ्टी के नॉर्म्स के हिसाब से हर एक प्रोडक्ट को उसके स्पेसिफाइड टेम्परेचर के हिसाब से जो है ना स्टोरेज किया जाता है। जैसे अगर किसी को -डिग्री टेम्परेचर में रखना है तो हम उसके लिए -डिग्री का कोल्ड स्टोरेज बनाया हुआ है हमने। सेम वही चीज जो है ना प्रोडक्ट मेकिंग में है। हम हमारे पॉप कारी में एक टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं जिससे उसकी क्वालिटी जो है ना और अच्छी उभर के आती है। तो उसके लिए हम लोगों ने कोल्ड स्टोरेज बनाया हुआ है पूरा, जिसमें एक प्रोडक्ट का मिनिमम टेम्परेचर जो होता है, जहां वो प्रोसेस मिक्सिंग से लेके अप टू बेकिंग तक उसको हम मेंटेन करते हैं वहां पे। नेक्स्ट,
कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेजर जो है वो प्रोडक्ट रेंज है, मार्केट पोजीशन, मार्केट प्रेजेंस, स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, R&D। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो वी हैव 500 प्लस SKUs। जैसे कि सर ने बताया हमारे पास 6 मंथ की बेबी से लेके 75 इयर्स के ओल्ड एज तक की प्रोडक्ट है और साथ में यूनिक प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड टेस्ट है। अगर हम बेकिंग की बात करें, जैसे सर ने आप पहले बताया स्लाइड में कि वी आर बेकिंग बेस्ड अपॉन ब्रिटिश रेसिपी। तो नॉर्मली क्या होता है बेकरी में सब मेन जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो मैदा होता है। अब मैदा जो है व्हीट से थोड़ा डाइजेशन में हैवी होता है, तब तक जब तक उसको एक प्रॉपर प्रोसेस से उसको मेक और बेक नहीं किया जाए तब तक। तो हम वो पूरी की पूरी ब्रिटिश रेसिपी के हिसाब से प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिससे खाने में वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ऐसा नॉर्मली प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो कोई भी ब्रांड अगर प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है तो 3P फॉर्मूला यूज करती है। जैसे सबसे पहले होता है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, उसके बाद में आता है प्रोडक्ट प्राइसिंग और तीसरा जो होता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्लेसमेंट। तो मेजरली ये है कि मैं उसमें और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, वो है हर एक प्रोडक्ट जो है इजी टू डाइजेस्ट होनी चाहिए। आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, क्वालिटी में बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन में भी अच्छी है, लेकिन आपने उसको कंज्यूम किया और उसके बाद में आपको जो है ना एसिडिटी हो गई, तो शायद वो प्रोडक्ट आप दोबारा यूज नहीं करोगे, दोबारा नहीं खाओगे वो। तो मेन चीज क्या होती है कि उसको डाइजेशन में, कोई भी प्रोडक्ट आप खाते हो तो इजी टू डाइजेस्ट होनी चाहिए। तो हम लोग वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिससे कि प्रोडक्ट जो है ना इजीली डाइजेस्ट हो जाए। अगर हम अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं तो हमारा माउथ का जो टेम्परेचर होता है वो 26 डिग्री होता है और स्टमक में जो होता है वो मैक्सिमम 38 डिग्री तक की कोई भी प्रोडक्ट आप खाते हो तो इजीली आपको डाइजेस्ट हो जाती है। तो हम लोग ये सब साइंटिफिकली भी जो है उसको फॉलो करते हैं जिससे कि जो है ना प्रोडक्ट को और बेहतर तरीके से बना सके हम। मार्केट पोजीशन की बात करें तो वैल्यू फॉर मनी ब्रांड है, उसके साथ में टारगेट ऑडियंस जो है हम लोगों का यंग जनरेशन है जिससे कि जो है ना वो लॉन्ग टर्म अपने साथ में जुड़े रह रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस एंड ट्रस्ट है थ्रू वेरियस मीडिया। अगर मार्केट प्रेजेंस की बात कर रहे हैं तो जैसे सर ने बताया 40 प्लस एक्सक्लूसिव आउटलेट है जिसमें मेजरली वडोदरा, अहमदाबाद, गोधरा, आणंद, डभोई, करजन, पादरा ये सब जगहों पे है। रिटेल काउंटर जो है मोर देन 20 सिटीज में जो है ना हम लोगों का प्रेजेंस है जिसमें ड्राई प्रोडक्ट, खारी, कुकीज, क्रीम रोल जो है वो हम सब जगहों पे रखते हैं वहां पे। और साथ साथ में ओवरसीज में भी ये जो है ना हम लोग प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई भी ब्रांड होती है उसके लिए मेन जो चीज होता है कि आपने मार्केट बना लिया लेकिन साथ में आपके बैकअप में जो है ना एक बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना जरूरी है ताकि आप जो है ना प्रोडक्ट को और अच्छी तरह से बना पाओ और अच्छी तरह से उसको मेंटेन कर पाओ। तो वी हैव अ 60,000 प्लस स्क्वायर फीट यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन बड़ौदा, 1 यूनिट इन अहमदाबाद। और सर्टिफिकेशन में भी ऐसा है कि आज कोई भी जगह पे जो है आप तो उसके साथ में ISO 22000 2005 सर्टिफाइड कंपनी है, प्लस हमारे पास में HACCP FDA सर्टिफाइड है। अब बात करते हैं R&D की। अभी ऐसा है कि जैसे हर एक जन जानता है कि आज के जो युग है उसके अंदर जो है ना आपको कांस्टेंट इनोवेशन देना पड़ता है प्रोडक्ट में। आप कितना भी अच्छा ब्रांड हो, कितने भी साल की आपकी लेगेसी हो, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली जो है ना इनोवेशन नहीं करते हो तो आपका ब्रांड सस्टेन नहीं होता है। तो हमारे पास में कांस्टेंट प्रोडक्ट R&D डिपार्टमेंट है, एक्सीलेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट, वैसे तो हमारे पास 500 प्लस SKU है लेकिन जो QSR मॉडल है उसकी जो प्रोडक्ट रेंज है वहां पे हमारे पास में कन्फेक्शनरी है। कन्फेक्शनरी में जैसे वेरियस वैरायटीज ऑफ टी केक, मफिन्स, फिर अगर हम ड्राई प्रोडक्ट की बात करें तो वैरायटीज ऑफ खारी, टोस्ट, कुकीज की वैरायटी है जैसे इसबगुल कुकीज। शायद मार्केट में आपको जो है ना इसबगुल कुकीज कहीं नहीं मिलेगा, हम वो बनाते हैं इसबगुल कुकीज। प्रेगनेंसी कुकीज, आज लेडीज को जो है ना उसकी बॉडी में जो मिनरल्स चाहिए होते हैं वो सब मिनरल्स उसको मिले, इसके लिए हम लोगों ने प्रेगनेंसी कुकीज लॉन्च की है। क्रीम रोल्स के लिए हम लोगों का एक क्रीम रोल्स एक ऐसी प्रोडक्ट है जो बच्चों से लेके बूढ़े तक सबको अच्छी लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग जो है ना यंग होते जाते हैं हमको हाइजीन पता चलता है
तो हम लोग जो है ना क्रीम रोल खाने में थोड़ा हिचकिचाते थे। तो हमने क्या सोचा कि ओके ये क्रीम रोल को जो है ना एक अलग पैकेजिंग में लेके जाए। तो हमने प्रॉपर एक पैकेजिंग उसकी बनाई ताकि जो है ना वो खाने में आपको एक एक प्रोडक्ट क्वालिटी जो है लेकिन प्रेजेंटेबल भी उतना ही लगे। तो हमने इसका स्लोगन भी बनाया था कि बच्चों का अपनापन और बूढ़ों का बचपन। साथ में रोस्टेड स्नैक्स जो है वो वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट है जिसमें रोस्टेड समोसा, रोस्टेड बाकरवड़ी जो फ्राइड की हुई नहीं है, रोस्ट की हुई है सब। अच्छा, वेराइटीज ऑफ फास्ट फूड की अगर बात करें तो रेंज ऑफ पफ, पिज्जाज, गार्लिक ब्रेड, ब्रूचेटास, टोस्टीज, कोइन पिज्जाज, ये पूरी रेंज है फास्ट फूड में। अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है रेडी टू ईट प्रोडक्ट जिसके अंदर पाव भाजी, अचारी छोले, पनीर बटर मसाला, दाल तड़का, दाल मखनी वेराइटीज है जिसकी सेल्फ लाइफ 1 ईयर की है। और साथ में ट्रेडिंग आइटम की अगर बात करें तो वेराइटीज ऑफ खाकरा, नमकीन, सॉसेज, सॉफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह रेंज है पूरी। नेक्स्ट, जैसे सर ने बताया इंडिया प्रेजेंस की बात करें तो नेशनली भी है वो वाइड स्प्रेड नेटवर्क, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर, मोर ओवर 20 सिटीज इन इंडिया। जैसे गुजरात है, राजस्थान है, जो A+ काउंटर होते हैं वहां पे अपनी प्रोडक्ट की जो है ना प्रेजेंस है। मध्य प्रदेश है, गुवाहाटी तक अपनी प्रोडक्ट जो है ना जा रही है हमारी, कटक, भुवनेश्वर, सिलीगुड़ी, बिहार, इरोड एंड मेनी मोर। नेक्स्ट, अगर हम ग्लोबली बात करें, जैसे सर ने बोला था कि डिमांड प्रोडक्ट की ऐसी थी कि लोग यहाँ आके मांग रहे थे कि पे हमको आपकी प्रोडक्ट जो है ना फॉरेन भी लेके जानी है। तो हम लोगों का जो है ना और यहाँ पे ओवरसीज में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, केन्या, साउथ अफ्रीका, यूके, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यूएई, सम पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा, ये सब जगहों पे हमारी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है आज। ओवर टू यू सर नाउ। Thank you, Vinod. Next slide, please. Other group of companies. तो हमारा एक ब्रांड है मिस्टर टोस्टीज बड़ौदा में। एक कैफे बनाया है जो लोगों को बहुत पसंद आता है। टोस्टीज के नाम से कैफे है जहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स जो है कॉफी हो गया, चाय हो गई, ये सारी जो फास्ट फूड के साथ एक रिक्वायरमेंट रहती है, वैसा एक मिस्टर टोस्टीज के नाम का कैफे है। वॉल्यूशन ब्रांड हमने बनाया है फॉर प्रेगनेंसी कुकीज। हम लोगों का एक यूनिक प्रोडक्ट है। हमने जो है गवर्नमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें 9000 लेडीज को ये प्रेगनेंसी कुकीज गवर्नमेंट ने हमारी तरफ से सप्लाई करवाया था। अब वो सारी की सारी लेडीज जो है उन्होंने ये कुकीज जो क्वांटिटी में हम लोगों ने डिजाइन किया कि मिनिमम इतना क्वांटिटी उसको खाना है, तो फॉर 15 मंथ्स गवर्नमेंट ने वो कुकीज उनको खिलाया और जो विटामिन, आयरन, मिनरल्स, हेमोग्लोबिन, जो भी कुछ एक बॉडी में रिक्वायरमेंट है प्रेग्नेंट लेडी की और बच्चे को लेकर, तो वो कुकीज जो है उसमें काफी अच्छा रिस्पांस और हेल्थ रिलेटेड बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन गया। और हमारी जो सीएम गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल, उन्होंने हमको बुलाकर और अवार्ड भी दिया हमको फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, ये कुछ आउटलेट की इमेजेस है जो आपको हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें आप देखेंगे तो ये सारे ड्राई प्रोडक्ट्स जो खारी, कुकीज और ये इतना ब्यूटीफुल पैकेजिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट है आदमी जो है आंख से खाता है कोई भी प्रोडक्ट, उसको दिखने में मजा आना चाहिए। सेकंड है खाने खोलने के बाद पैकेट, उसको जो है मुंह में टेस्ट आना चाहिए। अगर टेस्ट बहुत बढ़िया है तो ही वो आगे पीस खाता है। और इम्पोर्टेंट थर्ड चीज है वो है डाइजेशन। जो तीन चीज इसमें हम लोगों ने मेंटेन की हुई है, दिखने में भी अच्छा है, टेस्ट भी बढ़िया है और खाने के बाद अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट, अब मेन पॉइंट, फ्रेंचाइजी प्रपोजल। नेक्स्ट, फ्रेंचाइजी प्रपोजल, जब हम सोच रहे थे मिस्टर पफ को और एक्सपांड करें, तब हम लोगों ने ये देखा कि ये इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, डे बाय डे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। बट हो क्या रहा है यहाँ पर हो ये रहा था कि इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। किसी को भी अगर बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए,
उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट तक आने के लिए 3, 4, 5 साल 10 साल वेट करना पड़ता है। कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंकर होती है, बिकॉज हाइजीन, क्वालिटी, ये सब मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चा होता है। और इसमें सबसे बड़ा दूसरा एक ड्रॉबैक था वेस्टेज। तो ये सारी चीजों को कैसे ओवरकम किया जाए, उस पे हम लोग काफी टाइम से, ऑलमोस्ट लॉकडाउन से 1 साल से हम लोग ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे कि ये सारी चीजों को कैसे बाहर निकाल के और मिस्टर पफ की ब्रांड को एक्सपांड करें और नेशनल लेवल तक लेकर जाए। मिनिमम 1000 आउटलेट्स हम लोग मिस्टर पफ में कर सके, वो पोटेंशियल है, तो क्यों ना इसको एक्सप्लोर किया जाए। तो उसको जब सोच रहे थे तब हम लोगों ने ये देखा कि पॉसिबल है, अगर इसको हम सिंपल वे में थोड़ा सा स्टडी करके और अच्छे से इसके सारे स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, एसओपीज बनाएंगे तो कस्टमर के लिए बेनिफिट होगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो इम्पोर्टेंट क्या था कि ये पूरा बेकरी इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, तो हमने उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान किया। सेकंड, हाइजीन एंड क्वालिटी इसमें बिग इश्यू था, तो हमने वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सारे कंसल्टेंट्स को हायर करके इतना बढ़िया प्लांट बना दिया कि क्वालिटी और हाइजीन में से तो हम लोग बिल्कुल थ्रू हो गए। और आज हम लोग ये चैलेंज दे सकते हैं कि एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम क्वालिटी, हाइजीन आपको 100% बढ़िया ही मिलने वाली है। ओके, नो स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट एज प्रोडक्शन इज डन बाय मल्टीपल कुक्स। जैसे मैंने आपको बताया, स्किल लेबर के यहाँ पर कारीगर चाहिए, शेफ चाहिए, तो हमने इसको क्या किया, रेसिपी बेस्ड कर दिया, एसओपीज बना दिए कि शेफ हो कि ना हो, हमारी प्रोडक्ट जो है 365 दिन सेम रेसिपी सेम प्रोडक्ट बननी चाहिए। तो सारी गार्डेड रेसिपीज कर दी हमने। डिपेंडेंसी ऑफ स्किल स्टाफ जैसे बहुत बड़ा इश्यू था, उसको हमने सेमी स्किल स्टाफ में, अगर मेरा एक बार प्रोडक्ट बन गया और मुझे आउटलेट पे सेल करना है तो सेमी स्किल स्टाफ भी उसको बेच सकता है और अच्छे से वो समझ के और कस्टमर को सर्व कर सकता है। उसमें कोई उसको स्किल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग जो हम देते हैं उतना उसके लिए बहुत सफिशिएंट है। नेक्स्ट। ओके, ये जो पूरा मॉडल बनाया गया है वो पूरा मॉडल बनाया है फ्रोजन पे, फ्रोजन फूड पे। जैसे अभी एक नया स्लोगन है, फ्रोजन इज फ्रेश, राइट, क्योंकि अब हमें लॉजिस्टिक करना है, अगर हमें नेशनल लेवल पर जाना है तो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग प्रोडक्ट को फ्रेशनेस कैसे मेंटेन करें। तो हमने सारी प्रोडक्ट को R&D करके 1 साल की शेल्फ लाइफ दे दी है। 1 ईयर के शेल्फ लाइफ होने से फायदा ये हुआ कि अगर मैं पफ की बात करता हूँ तो 1 साल तक पफ अगर मेरे आउटलेट में रहता है फ्रोजन में तो खराब नहीं होता है। तो बेसिकली फ्रोजन करने से हम लोगों ने सिस्टम को इजी बनाया। जैसे कि आज मैं एक आउटलेट लेकर बैठा हूँ और मुझे जो है पता नहीं आज कितने कस्टमर कहाँ पर आने वाले हैं, आज कहीं पर फंक्शन है आसपास में, कस्टमर ज्यादा आ जाएंगे, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं है। तो हम लोगों ने ऐसा सेट किया है कि अगर मेरा रोज का 400 पफ का सेलिंग है और आज मुझे लगता है कि पास में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है और एक्सपेक्टेड है कि 200 लोग और आएंगे, तो उसको सिर्फ बेक करना है 200 एक्स्ट्रा पफ। अगर लगता है कि आज लॉकडाउन जैसा माहौल है, आज पब्लिक कम दिख रही है मार्केट में, तो आज 400 की जगह 200 पफ बेक करना है। तो सारी की सारी आइटम जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट बताई वो सारी फ्रोजन है। खारी भी वहां पर उसको बेक करके फ्रोजन, हम लोग फ्रोजन दे रहे हैं, फ्रेशली बेक करके कस्टमर को देनी है। कुकीज हम लोग फ्रोजन दे रहे हैं, फ्रेशली बेक करके कस्टमर को देनी है। तो होगा क्या, जब कोई चीज फ्रेश मिलती है तो ऑटोमेटिक उसका कंजम्पशन डबल हो जाता है। अगर मैं कोई चीज घर पे खाता हूँ और 4 रोटी खा रहा हूँ और वही चीज टिफिन में ले जाके खाता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरा एपेटाइट कम हो जाता है, क्योंकि वो टेस्ट उसमें से 50% चला जाता है। सब्जी रोटी सेम है जो डाइनिंग टेबल पे मिल रही है, बट सिर्फ और सिर्फ टिफिन में जब वो पहुंचती है ऑफिस तब तक उसका 50% टेस्ट चला जाता है। तो हम लोगों ने ये मेंटेन किया कि हर एक आउटलेट पे डाइनिंग टेबल वाला सर्विंग कैसे करें, गरम गरम सर्विंग कैसे करें, उसका हमने सॉल्यूशन दिया। ओके, अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की जो बात है, तो फ्रेंचाइजी फी 5.5 लाख है, सेटअप फी है 462, टोटल मिलाकर जो है इसमें 22,36,000 का टोटल रफली एक फिगर है, प्लस जीएसटी करते हैं तो 26.5 लाख रुपए होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि अगर कोई भी आउटलेट, कोई भी एरिया
जो सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो प्राइम लोकेशन होना चाहिए, मेन रोड टच होना चाहिए, सराउंडिंग में स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स अगर होते हैं तो हमारा बिजनेस काफी अच्छा ऑटोमेटिक ग्रो करता है। और इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज है, जो थ्री फेस का पावर चाहिए, वाटर कनेक्शन चाहिए और वेंटिलेशन चाहिए। अगर किसी एक शॉप को ये तीन चीज है ऑलरेडी, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा शॉप को बनाना और वहां पे प्रोडक्ट बेचना। नेक्स्ट, प्रोडक्ट मार्जिन स्ट्रक्चर। तो हमने 6 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है: कन्फेक्शनरी, फ्रोजन आइटम्स, फास्ट फूड एड ऑन्स, लाइव बेकिंग प्रोडक्ट्स, ड्राई प्रोडक्ट्स एंड ट्रेडिंग आइटम्स। तो 6 कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो हमने मिनिमम सेल्स को टारगेट रखा है 15,000। अगर मैं 15,000 का सेल करता हूं और कैटेगरी में इस तरह से कंट्रीब्यूट होता है कि मेरा कन्फेक्शनरी, मफिन्स हो गया, केक्स हो गया, टी केक्स हो गए, 10% यानी 1,500 रुपए के सेल करने हैं, फ्रोजन आइटम 6,000 का, फास्ट फूड आइटम 1,800 का, तो इस तरह से 15,000 का अगर टर्नओवर होता है तो एवरेज ग्रॉस मार्जिन 39% बैठता है। तो आप अच्छे से रिटर्न निकाल पाओगे अगर 15,000 रुपए का टर्नओवर पर डे एक आउटलेट करके देता है तो। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आरओआई स्ट्रक्चर तो आपका इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ब्रांड ओनर हूँ। जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं भी हर जगह इन्वेस्टर हूँ। तो मैं क्या सोचूंगा जब मैं बाहर जाऊंगा, मैं अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूं तो क्या सोच के खरीदता हूं, मैं अगर कोई बिजनेस करता हूं तो क्या सोच के करता हूं, तो उसको ध्यान में रखकर ये पूरा अगर आप आरओआई स्ट्रक्चर देखेंगे तो अगर 15,000 का सेल हमने एवरेजली पर डे अगर अचीव कर लेते हैं तो हमारा पेबैक मंथ्स है 24 मंथ्स। तो आपके 24 महीने में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर आ जाता है, उसके बाद रेस्ट इज योर प्रॉफिट। तो ये पूरा एक चार्ट बनाया है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, नॉमिनल परसेंटेज से इसको हमने ग्रोथ दिया है। इससे कहीं ज्यादा होगा बट हमने कंजर्वेटिव फिगर्स रखे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, की सपोर्ट फंक्शन। तो पहले तो एक हमारा जो मैंने आपको बताया फ्रोजन प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट सप्लाई, लॉजिस्टिक, वो आपकी आप तक कैसे अच्छे से पहुंचे उसका हमने पूरा यहाँ पर अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। रेसिपी स्टैंडर्डाइज हो गई है सारी। आपको वहां पर अगर पफ का ऑर्डर आता है तो सिर्फ फ्रोजन पफ निकालना है, कोई दिमाग चलाना नहीं है, निकाल कर अरेंज करके अवन में डालना है। अवन जो है हमारा जर्मनी मेड अवन है, जिसमें एक बार आपने प्रोग्राम मैंने सेट किया हुआ उसमें सारी प्रोडक्ट का। आप अगर P1 प्रेस करते हैं तो उसमें पफ बेक होता है। हम आपको लिस्ट देते हैं P1 पफ, P2 कुकीज, P3 खारी। तो फॉर एग्जांपल आपने P1 सिलेक्ट किया, पफ अंदर डाल दिए आपने, फिर आपको आपका काम करना है। फिर जब ये पफ बेक होंगे 30 मिनट्स में, तब ऑटोमेटिक सायरन बजता है, तो आपका पफ रेडी है। फिर आपने पफ निकाल के खारी डाल दिया P2 में, तो फिर आपको आपका काम करना है। जैसे खारी रेडी हो जाएगी, ओवन आपको सायरन बता देगा कि रेडी है खारी, आप ले लो अब इसमें से। उसके बाद मार्केटिंग तो स्टैंडर्डाइज, जैसे अभी जनरली सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म ये सब जो चल रहा है, तो सेंट्रलाइज जो है हम लोग उसको मैनेज कर रहे हैं सोशल मीडिया को। तो वो सपोर्ट एक फ्रेंचाइजी को मिलेगा जहाँ पे सेंट्रलाइज मार्केटिंग उस पर्टिकुलर आउटलेट को लेकर भी हम लोग ध्यान में रख के और उसको ग्रोथ कैसे मिले वो करने वाले हैं। प्री ओपनिंग यूनिट सेटअप के लिए गाइडेंस एंड सपोर्ट हमारा 100% रहेगा। ऑपरेशंस कैसे करना है उसका ट्रेनिंग रहेगा। ट्रेनिंग में इंपॉर्टेंट है डे टू डे ऑपरेशंस, कैसे क्लोजिंग स्टॉक लेना है, कैसे पीओएस यूज करना है, बारकोड कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें हमारे यहाँ से ट्रेनिंग दी जाएगी। एसओपी सारी जो है वो रेडी है, वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे और आपके स्टाफ को वन टाइम ट्रेनिंग देनी होगी, 100% हम लोग उसको ट्रेन कर देंगे। नेक्स्ट प्लीज। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है लेवल ऑफ मास्टर फ्रेंचाइजी। तो मैं चाहूंगा यहाँ पर अंशुल जी, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो बेटर रहेगा। ओवर टू यू अंशुल जी। जी सुशील जी, थैंक यू वेरी मच।
Anshul ji? Sorry, yeah. Yeah. हाँ जी. So, thank you very much for a great presentation so far, Sushil ji. Thank you. So friends, जैसे आपने देखा इस presentation में company already 48 unit franchisees single stores operate कर रही हैं, and अभी ये सभी stores गुजरात state में ही हैं, right? Now plan is to go outside of Gujarat also, and because it's frozen food supply है, तो इंडिया में कहीं भी supplies कर सकते हैं. Already super stockist and distributor network है, 20 cities में presence है. So supplies is not a challenge, right? That's why the plan is to set up master franchisees, ideally at a city level. जैसे आप गुजरात से बाहर अगर फॉर एग्जांपल अगर एमपी की बात करें, तो इंदौर एक मार्केट है, जैसे इंदौर में मास्टर फ्रेंचाइजी आ सकते हैं, एंड 15-20 स्टोर्स विद इन इंदौर कैन बी डन. सो ये एक आइडिया है. इसमें मास्टर फ्रेंचाइजी का रोल दो तरह से रहेगा. वन, मास्टर फ्रेंचाइजी की कुछ डेवलपमेंट ऑब्लिगेशंस होंगी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स टू बी डन, जो हम एग्री कर लेंगे म्यूचुअली, और वो आपको डेवलप करने होंगे ओवर 5 years पीरियड. सेकेंड, आपको एक वेयर हाउस सेटअप करना होगा, जहाँ पर कंपनी आपको सप्लाईज करेगी, एंड फिर लोकली अपने सिटी में आप लोकल लॉजिस्टिक्स आपको मैनेज करने हैं, राइट? और इसके लिए कंपनी आपको ओवर एंड अबव 39% कंपनी आपको एडिशनल मार्जिन पास ऑन करती है. सो आपकी जो कॉस्ट है वेयर हाउस की, लोकल लॉजिस्टिक्स की, फ्रेंचाइजी नेटवर्क को सपोर्ट करने की, वो सब कॉस्ट आपकी कवर हो जाती है विद दैट एडिशनल मार्जिन, राइट? एडिशनली मास्टर फ्रेंचाइजी ऑल्सो गेट्स शेयर इन द फ्रेंचाइज फी. तो ये जो 5.5 लाख रुपीज फ्रेंचाइज फी आप कलेक्ट करेंगे मार्केट से फॉर ईच साइन अप, so that also we will share with you, right? So overall it's a great opportunity. Already 48 stores company चला रही हैं, pan India presence है, it's a strong proof of product, export कर रहे हैं multiple countries में. So in terms of supply, जैसे आपने जाना इस presentation में 60,000 square feet की factory है, so supplies में कोई भी challenge नहीं है, right? And highly scalable model, एक 300 स्क्वायर फीट की बेकरी सेटअप करना है, तो सिटी मास्टर फ्रेंचाइजी राइट्स लेकर आप 15 से 20-25 स्टोर्स, डिपेंडिंग किस सिटी की हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, स्टोर्स डेवलपमेंट प्लस वेयर हाउस, उसके लिए आपको एडिशनल मार्जिन मिलते हैं, प्लस यू गेट शेयर इन द शेयर इन द फ्रेंचाइज फी ऑल्सो. So good opportunity. I think we should definitely consider this. Yeah. So next slide, please. So just to summarize the entire presentation, as we're saying, this is the fastest growing Indian bakery brand, or already 48 stores presence across India. Unique business model, frozen food है. तो किचन आपको स्टोर लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करनी है. All the items are coming through supply chain, right? So minimal operation at the store level, जिससे आपका जो स्टाफ रिक्वायरमेंट भी है, जैसे सुशील जी ने बताया कि बहुत टेक्निकल स्टाफ लेने की हमें जरूरत नहीं है, तो विच मीन्स एक लो कॉस्ट रिसोर्स के साथ भी ऑपरेशंस मैनेज हो सकते हैं, राइट? प्रोडक्ट मेन्यू फॉर ऑल सीजन्स, यस. कंटिन्यूस इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. सो कंपनी का जो R&D सेटअप है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एट द फैक्ट्री, तो नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करते रहेंगे, और आपकी जो मार्केट की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली भी हम नए प्रोडक्ट्स मार्केट में ला सकते हैं. ऑलरेडी एक बहुत वाइड पोर्टफोलियो कंपनी हैंडल कर रही है, प्लस एज पर द रिक्वायरमेंट्स न्यू प्रोडक्ट्स कैन बी डन. मार्जिन ऑन सेल्स, जैसे सुशील जी ने बताया, जो सेल पैटर्न सुशील जी ने बताया है, और उसके बेसिस पे जो मार्जिन बताए गए हैं, 39% ओवरऑल एक एवरेज मार्जिन currently franchisees generate कर पा रहे हैं. So that's a very good margin to have in this business. And depending on the sales mix at your outlet, वो margin में भी 1%, 2% थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. But on an average 39% margin आपको generate आप कर पाएंगे. Standardized operating procedures,
ऑलरेडी बहुत ही सिंपल ऑपरेशंस हैं स्टोर लेवल पर, जो एक इजीली आप ऑपरेट कर सकते हैं. Last and very important, continuous appearance in social media. ऑलरेडी कंपनी जैसे सुशील जी ने बताया भी कि इन्वेस्टमेंट एक कर रहे हैं मार्केटिंग पर, मल्टीपल फॉर्मेट्स में मार्केटिंग कर रहे हैं, एंड सोशल मीडिया इंक्लूडेड. So that will always help you in terms of your development and bringing more customers to your stores. जी. So steps to take franchise, ये एक process develop किया है कंपनी ने. It's a 7-step process, starting with आपके एक initial application form हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप जा सकते हैं. In fact, you can also go get to Mr. Puff, and then of course फिर आपके साथ discussion शुरू हो जाएगी. Next week we'll have one-to-one meetings, calls, जिसमें डिटेल में हम डिस्कशन कर सकते हैं आपके लोकेशन के बारे में, आपके फाइनेंशियल्स कैसे वर्कआउट होंगे, सप्लाईज कैसे होंगी, उस लोकेशन पे क्या सपोर्ट मिल सकती है. तो डिस्कशन आपके नेक्स्ट वीक में प्रोसेस शुरू हो जाता है. एंड देन आपका साइट विजिट्स, अप्रूवल्स, एंड देन वी कैन ऑनबोर्ड द पार्टनर. राइट. नेक्स्ट. हाँ जी. So that will be the end of the presentation. जी. So Sushil ji, over to you, sir. Yeah, thank you, Anshul ji. So thanks Gaurav sir, thanks to Sonia ma'am. Rest over to you, Gaurav sir. Thank you, Sushil bhai. I think a great presentation by you, Vinod bhai, and also Anshul. So let's start with giving a little bit overview or summarizing the opportunity. And I have a fortune to know Sushil bhai for many years, and I've seen the journey for last at least a decade and a half, how they are evolving through technology. They had a historical legacy brand, but now with the technology coming in, they're able to bring much more scalability in the business model. And a lot of times the legacy brands don't have or imbibe the technology, so they are not able to scale. And one of the areas which I want to really emphasize is the technology first part, because a lot of people think that the frozen is not fresh. Frozen in a bakery is actually the best practice done by globally almost all brands in the world. The finest of the bakery brands actually would use the frozen technology. Why frozen? Because the base becomes standardized, and the value addition which you do at the store, which means that the baking at the site, really makes it a fresh product to be given to people. What it does is also brings in a huge amount of consistency across board. You see the best of the brands in the world, one of the best top French brands which are known for it, or even a lot of other European brands which are actually doing that. Great bakery is actually known from Japan. Japanese bakery brands are very well known, especially for their Japanese bakery. So they all use frozen technology. Now this technology is available, and Baroda city particularly has done a phenomenal amount of R&D, and one of the best capabilities in building. And Sushil bhai himself has put a very large capability to service that demand. Now you have to understand that because of their quality, they were preferred exporters to world's best markets. You cannot export to countries like Singapore and address those markets, because these countries have a phenomenal amount of internal capabilities of bakery and well-developed bakeries historically for many, many years. And they have a lot of Chinese influence, a lot of English influence to the entire thing. So he was able to export to these markets, which speaks a very high about their quality and capability as an organization. So they have really done a full 9 yards in terms of building their capability, both from manufacturing, exports, distribution, and creating a wider product offering also. Because in India, you might be a great specialist on a particular product, but the consumer, when it comes to retail, wants a larger demand. So today there is an offering of a full bakery, a confectionery, and a packaged food and ready to eat. 4 different baskets they are bringing in. So they are bringing all the 4 baskets, which creates a great value for a retail experience. When you can come in, you can buy ready to eat. You can obviously buy a lot of confectionery. You can consume a fast food, which is there, a little bit of finger food, which you can consume, which is a large part of their
sales cycle. And all this is done in a certain quality. Why I like this business model, and I really reached out to Sushil bhai to really take this plunge to become a pan-India company, because most of the time we feel in the food business, there are challenges of back of the house. Almost everybody who comes and talks about it, they have a challenges of back of the house. Manpower नहीं मिलता है, chef नहीं मिलता है, consistency नहीं आती है, quality नहीं आती है, and more importantly, it adds to your cost. If you have a business model which just has a front of the house, which means that you work like a retailer and you have margins like F&B, then the combination becomes understanding. So you see why people go to F&B, because the margins are better. Kriana business doesn't have a right margin. If I create the F&B business, which is also over the counter, doesn't have a back of the house, you get a great margin, but you don't have to have any back of the house. You don't have to have chefs. You don't have to have that. The business model becomes financially very attractive. The two things which are most important for any investor to look at it is how simple that business is to run and operate. It should not have complexity. So I will give 10 on 10 marks to this business model of Mr. Puff, that it is the simplest business model to do that. It is what I call idiot proof, which means that if you just do, anybody can do, assemble it and give it to a product. I can dispense extremely fast. So it has no complications on the business. Second, it should create the largest yield from the trading hours viewpoint. So the product itself has the largest trading hour capability. It can start from 8 o'clock in the morning until 10 o'clock in the evening. I can trade from the same store. So in that sense, its business model becomes extremely attractive for anybody to do that. So I will start with few questions, and add and Raj bhai, who is our partner in Vadodara, he's also joined in. So we all had a detailed workshop and understand that what needs to be done. And I know how difficult it becomes when you are a third generation entrepreneur and you're carrying a legacy of your grandfather, father, and now your own legacy also have come in to now let go your brand to somebody else. I know it is very difficult. It might look very simple, but it's not for money. It's no more for money because you are already doing well. So Sushil bhai started this idea, and we very difficultly actually convinced him that we should do a city-based franchise model also, where somebody can become a master, kind of a city franchise master, opens up one outlet, creates that outlet for a trial and a training, also creates a small store, maybe not big enough, maybe 300-400 square feet, that's enough to keep the product to real-time fulfill to the stores and that thing. But somebody has a strong development capability, जो अपने सिटी के अंदर 15 से 20 स्टोर बना सकते हैं. बड़ा सिटी हो हैदराबाद जैसा, तो you can do maybe 50 stores. If you do Pune, you can do 50 stores. And I know a lot of people have done that, but वो quality lack करते हैं जब बनाते हैं scalability. यहाँ पर आप quality, consistency, supply chain product, packaged food, everything you can give. So I would say the cities like Pune, Hyderabad, Bangalore, Mumbai can be 150-200 store opportunity. If somebody is strong enough to take that market opportunity, it can be a very, very significant opportunity. NCR, Jaipur, these are all great locations. Even smaller cities, cities like Nagpur, Raipur, these are great markets to do that. And I have a very strong belief system on the business model. We normally don't come and endorse completely. You've seen my webinars. I've done last 600 plus webinars. I normally don't endorse a brand, but I can take that we feel that it's a brand which I can completely endorse and say this is a great brand to really go out and invest. It is a responsible thing to make a statement, but it is a good brand. We always vouch for our brands which are like that. So Sushil bhai, we start with the model of the master franchise. The big immediate market to you comes in Gujarat itself, Ahmedabad or Surat. Are we open for starting with even those markets to do that, because that's your natural markets where there is already a big client base and already there? So are you open for these markets also? Yeah, definitely, certainly. So that's also a great market. So I always say that the best opportunity, I know Raj bhai thoda sa aage aa rahe hain because I know it is his market and it is his play. So he likes to have anything which happens in Gujarat.
So there's a great opportunity in Surat, Ahmedabad, even Rajkot, a good market so all these markets are very interesting opportunity. Yes. And now let's do a little bit of a product comparison. You know, while I know some products which we are having a large amount of uniqueness, like a puff products or our cookies, and especially baked cookies you don't get anywhere, you always get packaged cookies. But when it comes to packaged product, I know you are bringing a lot of packaged product also. How are we placed from our competition viewpoint? Any USP you want to talk about? And also the price point. What is the price point comparison which you would have to any other comparative product available in the market? See, if we talk about product like Puff, so I think Puff is a product where we can do many miracles. So जैसे कि अगर Puff में varieties of Puff की बात करूं, तो NCR में जैसे हमने स्टडी किया था दिल्ली में, तो वहां पर भी Puff मिलता है सिर्फ एक बटर पैटिस. अब हमारे पास है varieties of Puff, राइट. अगर बात करें कुकीज, खारी और रस्क की, तो वी आर वेरी कम्पिटिटिव, वैल्यू फॉर मनी ब्रांड. हम लोगों ने प्रोडक्ट को, क्योंकि इतना बड़ा फैसिलिटी है, तो प्रोडक्शन जो हमने सेटअप किया है वो ह्यूज स्केल पे हम लोग बना सकते हैं. तो हमारा जो कॉस्ट फैक्टर है वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है, राइट. सारी मशीन्स हमने लगा दी है. सो फॉर अस टू मेंटेन अ कॉस्ट एंड इफेक्टिव कॉस्ट, वो बहुत इजी हो गया है अभी. एक्सीलेंट. एंड विनोद भाई, इफ आई कैन रिक्वेस्ट, आपके पीछे जो प्रोडक्ट पड़े हैं, अगर हम पैकेजिंग दिखा सके अपने. तो खारी बेसिकली गौरव सर, हम लोग के पास वैरायटीज ऑफ खारी है. एक जैसे ये मेथी खारी है, एक ये जीरा खारी है, राइट. इस तरह से हमारे पास जो है खारी में ऑलमोस्ट 12 प्रोडक्ट्स हैं, 12 वेराइटीज हैं. सारी खारी जो है 144 लेयर्ड खारी है. अगर टेक्निकली मैं आपको बताऊं तो जैसे ये खारी में नॉर्मली आप जो है जो भी रूटीन खारी खाते हैं उसमें लेयर्ड होते हैं 36 to 42. हम लोग इसमें 144 लेयर्स दे रहे हैं. तो थोड़ा सा टेक्निकली मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से जो क्वालिटी का लेगेसी चलता आया है उसको आज भी हमने मेंटेन किया, और अकॉर्डिंगली हमने मशीन्स बनवाई कि मुझे 144 लेयर खारी बनानी है, वही टेस्ट वही क्वालिटी मुझे कंसिस्टेंट रखनी है. तो इसी तरह से सारी प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी है. हम लोग एक चीज समझते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हम खाते हैं तो मुंह में चिपकनी नहीं चाहिए. सी, हेल्थ को ध्यान में रख के अगर हम बात करें तो अगर जो चीज मेरे टीथ में चिपकती है, दांत में चिपकती है, वो मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में चिपक जाएगी. तो जब हम बात करते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर बोलते हैं मैदा मत खाओ. सी, ये पूरा बिजनेस, बेकरी बिजनेस मैदे पे चलता है, बट डॉक्टर्स बोलते हैं मैदा मत खाओ. तो अब करेंगे क्या? तो बेसिकली लैक ऑफ अवेयरनेस ये है कि अगर आप देखो तो ये जो बेकरी है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है. तो बेकरी फॉरेन का किचन है. जैसे आज साउथ इंडिया में हम लोग डोसा एक अपना कोर है, नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो पंजाबी है, राइट. गुजराती में देखेंगे तो गुजराती थाली है. तो इसी तरह से फॉरेन का ये रसोड़ा, ये किचन है जहां पर ये प्रोडक्ट वो लोग डेली खाते हैं. सुबह उठते हैं तब से रात को सोते हैं तब से. 6 महीने के बच्चे से लेकर 75 साल का एजेड बंदा भी ये बेकरी प्रोडक्ट पे ही जीता है. तो वहां पे उसको प्रॉब्लम नहीं होता है. ओबेसिटी सेकेंडरी, उसका वेट ज्यादा है वो तो क्योंकि चीज, सॉसेज और वो सब खाते हैं, बट मैदे से वेट नहीं बढ़ता है. अगर मैं आपको बताऊं प्रोडक्ट में, जैसे हम लोग का एक दूसरा मैं बताऊं, मेरा ब्रेड है तो ब्रेड को मैं 45 मिनट्स अवन में बेक करता हूं, खारी को मैं 40 मिनट्स बेक करता हूं. क्यों? क्योंकि जो मैदे का चिकास, मैदे में जो फैट होता है उसको हम वहीं पे तोड़ देते हैं, तो इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है. तो कुछ टेक्निक्स हैं आयुर्वेदिक तरीके से जो मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट की थी, उसको आज भी मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है. तो बेसिकली प्रोडक्ट में क्वालिटी के साथ साथ डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हम ज्यादातर फोकस, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, डाइजेशन. क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, बट हेल्दी नहीं है, तो भी आप नहीं खाओगे.
तो इम्पोर्टेंट है कि वो हेल्दी होना चाहिए। तो इस तरह से प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव भी है, हेल्दी भी है, और जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि हम लोग रेडी फ्रेश सर्व कर रहे हैं। आज अगर मुझे ताजा कुकी खाना है तो शायद मिस्टर पफ के बड़ौदा की बेकरी में भी अवेलेबल नहीं है, राइट। तो कुछ ही जो नए आउटलेट्स हैं हमारे, जो ये मॉडल में हमने कन्वर्ट किए हैं, वहीं पर ही वो फ्रेश कुकी मिलेंगे। अदरवाइज पैकेजिंग कुकी बेच रहे हैं हम लोग, फैक्ट्री बना रहे हैं और आउटलेट पे भेज रहे हैं, राइट। तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसमें फ्रेश प्रोडक्ट मिलती रहेगी और कस्टमर उसको अच्छे से खा पाएगा। Excellent. Very, very important that it is all about how do you really create these proprietary products. And if you create a proprietary product, it creates a subscriber कि कस्टमर वापस दोबारा उस प्रोडक्ट को रेगुलर लेने आता है। और ये जितने भी कन्फेक्शनरी के प्रोडक्ट होते हैं ये बहुत स्टेबल और बहुत ही सब्सक्राइबर बेस्ड होते हैं। A lot of questions are coming in. Sonia, if you can just see all the questions which are coming in, and if you want to start taking some questions immediately, because we're already over 1 hour. And a lot of people are also, I would request, go and apply for a area or a master which you are interested. Please write your city which you are in. A lot of people have already written. Some have written for MP. MP is a great market, a very, very strong market, but you can also, all the other people also can write some other cities which you are keen on. Over to you, Sonia. Just like to add, Sushil Bhai, you have a very good brand story and which has touched consumers not only in India but international. And most important part which I liked is that your business is built on bedrock of very strong values and foundation of trust and honesty. And I liked what you talked about 1000 outlet vision, and you have also worked throughout the last year. जो आपने बताया lockdown में you've created this technology which is backed by idiot proofing of the model, which is very critical for any business to scale and also replicate and bring standardization. So ये चीजें बहुत important है किसी business को scale करने के लिए. So I'll just quickly take a couple of questions, and I'm seeing a lot of people asking to get in touch with you directly. आपसे बात भी करना चाहते हैं, कुछ information भी चाह रहे हैं. एक question सुशील भाई मैं जो लेना चाहती हूँ, if we can answer that now, या हम 1-to-1 वो master franchisee के ऊपर भी आ रहा है. Do you want to advise क्या fee हम structure करना चाहते हैं, क्या हमारी sharing होगी, या वो हम city to city हम decide करेंगे? Many questions I see around master franchisee. अगर हम if anything that you want to say around that. या सिटी टू सिटी डिसाइड करेंगे कि 10 आउटलेट करना है, 15 करना है, 20 करना है, 50 करना है। जैसे गौरव सर ने बताया कि पूना का एक कैपेसिटी है 50 आउटलेट का, तो वैसे करेंगे। Sure, right. एंड सुशील भाई इसमें ना कुछ इंक्वायरी जो मैं देख रही थी वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की भी थी। आपके 20 स्टेट्स में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स, सुपर स्टॉकिस्ट आपने बताया ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो जहाँ पे अगर हम यूनिट हम करना चाहेंगे, इट इज मैंडेटरी फॉर दैट लोकेशन टू हैव अ मास्टर फ्रेंचाइजी इन प्लेस, या अगर मास्टर फ्रेंचाइजी नहीं होगा तब भी हम यूनिट डाल सकते हैं? कर सकते हैं यूनिट, बट वहां पर ऐसा होगा कि फिर हमें मिनिमम 5 यूनिट्स होगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह सब इजी हो जाएगा। राइट करेक्ट। एंड कुछ लोकेशंस में हमारा सुपर स्टॉकिस्ट नहीं है, आप उसके लिए ओपन होंगे? कोई इंक्वायरीज है तो सुपर स्टॉकिस्ट लेके आती हैं? डेफिनेटली ओपन रहेंगे, डेफिनेटली। I'll just quickly see 2-3 questions और मैं देखते हैं if we can pick these questions while I know we are running out of time. And सुशील भाई इसमें कोई priority locations है जो आप I think जम्मू एंड कश्मीर से भी I think कुछ लोगों ने लिखा है जो interested हैं, तो पूछ रहे हैं is JNK good enough or potential enough a location for them to apply? Definitely any city has its own potential. तो अगर हम लोग प्रॉपर प्लान करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में भी कर पाएंगे, क्यों नहीं करेंगे? एंड सुशील भाई एक और, क्योंकि हम बेकरी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, a lot of people are asking on you know पेस्ट्रीज हो गए, आपके जो फ्रेश केक्स होते हैं, will that be a part of this new offering या वो हम नहीं इसमें हम डालेंगे? पेस्ट्रीज एंड केक्स जो है हम लोगों का अभी वाले जो मॉडल में ऑफरिंग नहीं है, बट जैसे गौरव सर के साथ मेरा डिस्कशन चल रहा था, वी कैन डेफिनेटली प्लान फॉर दैट। कैसे करेंगे वो थोड़ा सा हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं अभी। हाँ जी, पर्टिकुलर केक्स एंड पेस्ट्रीज को लेकर, बाकी तो सारी प्रोडक्ट्स हैं उसमें। Sure, Sushil bhai. I think what we can do is, you know, we can set up a date. A lot of people want to get in touch with you, कुछ distribution के लिए, master franchisee and unit के लिए भी, and they would get more comfort to get maybe a direct interaction. सुशील भाई, तो एक अगले हफ्ते हम एक टाइम रख सकते हैं, कोई भी एक दिन जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, और कोई ऐसा दिन जो आप
सजेस्ट करना चाहते हैं जब हम ये मीटिंग्स आपकी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? एनी पर्टिकुलर डेट आपके कैलेंडर के हिसाब से? नेक्स्ट वीक अगर करना है तो ट्यूसडे इज फाइन, और अगर इस वीक करना है तो सैटरडे, दिस वीक सैटरडे एंड नेक्स्ट वीक ट्यूसडे, एनी डे इज कंफर्टेबल। नेक्स्ट वीक ट्यूसडे करते हैं, लेट्स डू अ बिग, हमारे उसे हम कहते हैं मेगा एफएम, जो हमारा एक डिस्कवरी डे होता है, जिसमें सिलेक्टेड जितने भी लोग होंगे ऑल इंडिया से, हम आपके लिए मीटिंग कराएंगे नेक्स्ट ट्यूसडे। लेट्स हैव दिस, बट बिफोर दैट यू प्लीज रीच आउट टू आवर रिस्पेक्टिव कंसल्टेंट्स और राइट टू आवर बिजनेस हॉटलाइन नंबर, and we will do that, and also shortlist, profile it, and then we'll organize a detailed meeting with you. Now, before we try to end the discussion, I would like to hear from Raj Bhai, because he is also he has many hats. One, he is a big fan of your product, being living in your city as a so he has to talk like a fan of the brand. He also is a great business advisor, helped a lot of बिजनेस ओनर्स अक्रॉस गुजरात। इन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस को, स्पेशली यंग एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प किया है अपना राइट बिजनेस करने के लिए। और थर्ड, आज ये आपको भी आपकी नेशनल एक्सपेंशन के लिए एडवाइस कर रहे हैं। तो ओवर टू यू राज भाई फॉर योर कमेंट्स एंड योर शेयरिंग द थॉट्स। थैंक यू वेरी मच गौरव सर, सोनिया मैडम थैंक यू वेरी मच, सुशील सर थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ग्रेट प्रेजेंटेशन। मैं पैन इंडिया पे एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैं सेम सिटी से हूँ, सेंट्रल गुजरात में मिस्टर पफ इतने सालों से चल रहा है। यहाँ पे पब्लिक इसको लोकल मैकडोनल्ड बोलती है, जो गुजरात में जो पब्लिक होती है वो इसको लोकल मैकडोनल्ड बोलती है, इसीलिए एक चीज थी। दूसरा, जो मास्टर फ्रेंचाइजी और एरिया फ्रेंचाइजी का मॉडल बनाया है, वो मेरे हिसाब से जिसने भी इसमें एंटर करेगा वो एक लोकल ब्रांड खुद मिस्टर पफ का बनेगा। वहां पे एक एक्सपेंशन के रिलेटेड में वो उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, जो ट्रेडिंग के थ्रू भी आएगा एंड जितने भी आउटलेट आएगा उससे भी आएगा। सुशील जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता था, जो अपने जितने भी अभी व्यूअर्स है उनको थोड़ा कंफर्ट जोन भी लगे, आई नो सम गुड पॉइंट्स अबाउट योर ब्रांड ऑल्सो, कि हमारा पर डे में कितना ओवरऑल पफ जो है, सिर्फ पफ की बात करते हैं, वो कितने नंबर अच्छे आउटलेट पे जा सकता है जो जाता है? जैसे ए ग्रेड आउटलेट है राज भाई, तो अराउंड 700 to 800 पफ डेली। और जैसे छोटा सा आउटलेट है सावली, यहाँ पर एक छोटा विलेज है, सावली विलेज है, वहाँ 350-300 पफ डेली बिक जाता है। थैंक यू। सो हम फुटफॉल अगर बात करें कि छोटी ब्रांड है, छोटी टिकट साइज है, फुटफॉल कंटिन्यूस वो करेगा और उसके साथ में दूसरी भी छोटी छोटी चीजें जाएगी। सो हमारा जो बिजनेस मॉडल है उस पर कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है, जितना फुटफॉल ज्यादा कंप्लीट आता है। सो थैंक यू वेरी मच। इतने सब धुरंधर सब सामने बड़े बैठे, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, बट इट्स माय प्रिविलेज टू जॉइन विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच गौरव सर, सोनिया मैडम थैंक यू वेरी मच, सुशील जी थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम। थैंक यू अर्चना। राज भाई, थैंक यू। So thank you so much, Sushil. Thank you so much, Benosa, for joining in and giving us the detailed presentation. We would like to thank Raj Bhai, Gaurav sir, and Sonia ma'am. Dear participants, please accept our thanks for sparing time today and joining for this great webinar. Please book your slot for 25th of May, which is a discovery day, where we will set up your call with the team of Mr. Puff at the business hotline number, which is 9717683838. We have shared the same number in chat box also. Do connect with us at a different social platforms so that you can share your suggestion and feedback with us so that we improve our processes. Please join us at the Facebook page of Franchise India Brands Limited. We have done more than 500 plus webinars and different summits. They are already available in the video library for you. Connect with Gaurav sir and Sonia ma'am at their respective LinkedIn IDs. And we invite you to join us today for our 30 days, 30 city shows, which will start at 7 p.m. Today, we are inviting you to join us for Bihar chapter, where our aim and objective is to bring top 5 business opportunities so that you can get a correct and complete understanding about these brands. So do registration today so that you can join us sharp at 7 p.m. And tomorrow, under Business Opportunity of Chai webinar series 12 p.m. show, we invite you to join us for Serona Diagnostic. That's the brand from Bombay. They're coming and offering the FOCO model for each one of you. So please do registration for both the shows
today 7 p.m. and tomorrow 12 p.m. at same business hotline number. Thank you so much once again for joining in today. Have a safe day ahead. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, so Sushil much. sir. Thanks, Thank Vinod you, bhai. Sonia ji. Bye. Thank you, Gaurav ji. Thank you, Raj bhai. Archana, thank you. Thank you so much, sir. Bye. Thank you, Anshul. Thanks, Anshul. Bye.